Assalamualaikum. I'm Sohira Sajid. Welcome to PNY Training's Facebook Live Show. अपने प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाती जाऊं. So PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज deals under these entities: PNY Trainings, PNY Pink, and PNY Advertising. PNY Training is Pakistan's best IT training institute, and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration. So and PNY किन किन डिपार्टमेंट में जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको ये सब सिखाने के लिए वो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्ट एंड डिजाइन, media production, cyber security and networking, accounts, skills, and many more. Then PNY Advertising. It is a digital media marketing agency which provide digital marketing and other services to business. So you can take help to advertise your business. So, and the third one is, and my most favorite, आप सब girls की most favorite, PNY Pink. पिंक से पता चल जाता है कि ये समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स. सो PNY पिंक इज डीलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्फ ग्रूमिंग एंड मेकअप. तो इस तरह से PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं. अब हम आते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ. हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक है व्हाई मैनेजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन अर्लियर स्टेज ऑफ अ स्टार्टअप. इसके लिए जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूं. को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट सूप. तो वेलकम करते हैं मोहम्मद हमजा अल्ताफ साहब को. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. Thank you very much for the kind introduction. So बनता था. yeah, वो बनता था क्योंकि हम अच्छे से बताना चाहते थे आपको ताकि आप आइंदा हमें ना भूलें. ये बनता था इतना इंट्रो. all right, yeah. So related to soup, I would like to जी tell you बिल्कुल. मैं guys आपसे मैं यही कहने वाली थी कि हम अपने टॉपिक की तरफ तो आएंगे. तो काइंडली ये सूप, जब से मैं सुन रही हूँ सूप तो मेरे माइंड में आ रहा है गर्मा गर्म सूप. तो एक्चुअली ये कौन सा वाला सूप है, क्योंकि देखने वालों को भी कंफ्यूजन होगी कि ये कौन से वाला सूप है. So we get this a lot actually in every other place. अच्छा, ये भी वैसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का, बिकॉज सूप एक नाम है, स्टक हो जाता है और देन सब इसके बारे में पूछते हैं. तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है. No, it's easier to remember, पहली चीज. And secondly, it was just our co-founder. So he actually, we were sitting and he kind of came up with this name. It was soup. So पहले ये literally soup था, SOUP था पहले. अच्छा, अब तो ये SOOP सूप है ना. जी जी. पहले SOUP था. So unfortunately we were unable to find its domain. उसकी domain नहीं मिल रही थी. That's why we have to go to soup. SOOP. अच्छा, वरना प्लान आपका वही था. तो पर ये सूप क्यों? Yeah. So basically it's an abbreviation. It stands for School on Our Phone. Currently SOOP. School on Our Phone. We started off. Again बताइएगा. S stands for school. S for school. O for on. O for R. And P for phone. School on Our Phone. Okay. Yeah. इससे पहले it was you, so it was your phone, school on your phone. So when we actually looked out for the domain, we were unable to find that, so we had to change it to soup, SOOP. Currently, so what soup does, I think that's more important. And we basically digitize schools, colleges, academies, universities even. We provide a solution that helps schools go paperless, like regarding all of their operations, whether they are financials, whether they are their academic solutions, whether it's communication with parents or everything. We literally digitize everything. So we can say that we are one-stop shop for school, colleges, academies, and universities as well. So yeah, this is what we do. Currently, we have, alhamdulillah, we have got more than 85,000 students on board on soup, and more than like 95 schools that are with us currently. Schools, colleges, academies, combined. Our app has around 20K downloads. All right, all different apps collectively have 20K downloads. And yeah, we are alhamdulillah growing like 20-25% quarterly. So yeah. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो है, देखिए मैं तो कहूंगी कि ये एडवर्टाइज करने के लिए बड़ा अच्छा एक वे है, क्योंकि जब से मैंने सूप सुना मुझे तब से याद है
अच्छा आप ये ये बताइए, नाम नहीं निकलता ज़हन से। ये बिल्कुल इसका ऐसे ही है। अच्छा, अब ये है कि मुझे बताइए कि ये तो सब उन लोगों के लिए भी टिप है जो कि यहाँ पे इस पेज पे हैं और वो जानना चाहते हैं किस तरह से एडवर्टाइज़ करें, आपके पास बड़ी एक मेजर टिप आज आपको मिल गई है। अच्छा, अब बताइए कि ये जो एक मोड चेंज हुआ है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात कीजिए कि ये जो अभी आपने बताया सूप, इसकी ज़रूरत कब पेश आई आपको? आपने कब सोचा? और देन ये जो एक मोड चेंज हुआ है, इसको आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? मोड यू मीन टू से कि जॉब से स्टार्टअप करना अपना, उसकी बात कर रहे हो? जॉब अब अभी उससे पहले ये जो स्कूल्स का मोड चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सूप आया। Oh, सॉरी। तो स्कूल्स का जो मोड चेंज हुआ है, this has to be honest, we got some benefit from this. Okay. हुँ, It actually helped us to market our solution. It हुँ, actually help schools to get educated about digital solutions around them. ठीक है, पहले हुँ, it was really hard for our sales team to get meetings. हुँ, अब we just have to drop a call or drop a message, so we at हुँ, least get a meeting. तो वो आसान हो गया थोड़ा सा, and schools now they actually think कि अच्छा यार ऑनलाइन कोई चीज भी होती है। पहले हम बेचने हुँ, जाते थे, वी यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। पहले बहुत फ्रिक्शन था कि हुँ, देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने मुझे कहा है कि ऑनलाइन चीजें चलती नहीं है यार। इस तरह के लोग हुँ, भी हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब सही उस कह टाइम रहे पे व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे बट ऑनलाइन चीजें चलती नहीं है, तो हुँ, इस तरह के लोग भी थे। सो या इट वाज काइंड ऑफ unfortunately, I don't know what I should say, but हुँ। corona helped us and also helped schools to get educated about these पहले digital पहले solutions. पर्सन है कि जो कह रही है कि कोरोना ने उनको हेल्प किया No, no, और no. क्योंकि Yeah, I'll be very careful with my words. That's what I'm saying. That Corona actually at least gave an opportunity हुँ, to digital solutions to sell their हुँ, solution, okay, with a greater speed, हुँ, and also made schools realize that online solutions, they will help them whenever the time comes. All right, and हुँ, it actually helped them to make their work easier, to manage their work in a much efficient manner and effective manner. So yeah, so बस वहां से ये इसने हेल्प किया थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे मैं साथ-साथ एट द कमेंट्स वेरी भी सेम ऐड टाइम करती बट एट द जाऊँगी। वेरी सेम टाइम थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ है, क्योंकि हुँ, देखें आप जनरली जो परसेप्शन बिल्ड हुआ होता है वो ये है कि जी स्कूल सारे स्कूल्स कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। हालांकि हुँ, द रियलिटी इज कि 90% ऑफ स्कूल्स और मे बी 95% ऑफ द स्कूल्स दे आर क्लोज्ड। ओके, हुँ, दे आर नॉट डूइंग बिल्कुल। एनीथिंग, लिटरली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक्चुअली दे वाज़ इफ नॉट एक्चुअली दे वर नॉट रेडी फॉर दिस सिचुएशन। वो एकदम से जब हुआ और कभी पहले डिजिटल चीजों की जो एजुकेशन है सब वो नहीं प्रोवाइड की गई थी और कभी इतना कंसर्न ही नहीं था कि काम तो चल रहा है, सो दे वर नॉट ऐसे रेडी। और वो एकदम ऐसे से जब एक चीज आई तो वो बहुत जो इस सिस्टम में मर्ज कर गए किसी हद तक कनेक्टेड थे वो तो चल गया, वरना अदरवाइज बिल्कुल ऐसा ही है, उनको बंद करना पड़ा। हाँ जी, वो जो रेजिस्टेंस आती है इनिशियली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाने की, या हम्म, तो उनके ऑनर्स वो ले नहीं पाए, और अगर उन्होंने ले भी लिया तो जाहिर बात है जो पेरेंट्स की क्लास उनके पास आ रही थी या बच्चों की जो क्लास आ रही थी, दे डोंट हैव लैपटॉप्स, दे डोंट हैव मोबाइल फोन्स, तो वहां पे हम्म, बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे वर डाउन ऑलरेडी, एंड जो हम्म, बाकी बचे थे, सो उनमें या हम्म, वी वर एबल टू टैप अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल जो कि बचे थे हम्म। उनमें से। बिल्कुल। यहाँ पे आबिश खान हैं, वो पूछ रही हैं क्वेश्चन, रही हैं कि रही हैं, अब ये नहीं मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट सूप राइट। व्हाट इज़ सूप? अच्छा, वो आपको उसका आंसर मिल गया और आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं आप इसी तरह से कमेंट्स में करते रहेंगे और ये साथ में हमारे हैं सर मोहम्मद हमज़ा साहब, तो ये आपको बताते रहेंगे। अभी जो है आई थिंक ये जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन है उससे भी आपको बहुत कुछ ये जो आप पूछ रहे हैं उसके आंसर मिल जाएँगे। सूप का आंसर आपको मिल चुका है, ये देखा? जी, सूप क्या है ये पूछना ये सभी के ज़हन में एक सवाल कि ये एवरीवन सूप एवरीवन ये बहुत होता अच्छी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं तो अब ये देखिए सबको कहूँगी कि आप इसी तरह से जो या है आप कुछ अपनी सिलेक्शन करें जो अपने नाम की, क्योंकि समटाइम्स सोचते हैं लोग कि हम कुछ ऐसा डिफरेंट सा नाम रखें, वो किसी को समटाइम्स समझ में नहीं आता, प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है और ये एक ऐसी चीज़ है, इससे पता चला कि आप ईज़ी नेम रखें और ऐसा नाम जो कि आपके माइंड में मार्क हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है? व्हाई मैनेजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट इन अर्लियर स्टेज ऑफ अ स्टार्टअप, क्या कहेंगे इसके या बारे सो सबसे पहले I don't know currently the people who are actually attending this particular seminar. में? All right.
उसमें से काफी सारे आई एम एक्सपेक्टिंग के डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होंगे, एंड a bunch of them would be IT graduates या फिर IT ट्रेनिंग जो आपसे लेके गए हुए हैं वो होंगे, alright. So और वो लोग भी हैं recently जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस मोड चेंज होने के बाद, और वो कुछ सीखना चाहते हैं, आप वो जानना चाहते हैं। अभी जो बात हम कर रहे हैं, स्पेशली आप तो जानते होंगे कि जब स्कूल्स में इस तरह का सिस्टम आया है तो मदर्स के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज वो तो इस डिपार्टमेंट से किसी भी तरह से गो थ्रू नहीं है। और जब उनके बच्चे कहते हैं मामा ये हो गया, मामा वो हो गया, और फिर ऑनलाइन क्लासेस उनकी फंसी हुई होती हैं, तो फिर वो सब लोग भी यहाँ पे हैं सुनने के लिए। all right. So we have got a diverse audience here. So सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि in the recent years, okay, Pakistan has become a hot market for startups. Okay, we are getting in a lot of investments. अगर आप पिछले खाली एक साल के निकाल के देख लें, ठीक है, you'll see like around 10-12 investments easily in Pakistan in different सेक्टर्स के अंदर. ई कॉमर्स के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है. एक्चुअली कॉमर्स में काफी सारा इन्वेस्ट किया है. आज ही मैं देख रहा था 2 स्टार्टअप्स को जो है वो फंडिंग मिली है. ठीक है, सो पाकिस्तान एक फोकस में आया हुआ है इस टाइम पे. इट्स एन हॉट एरिया, ओके, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट हैज सम पोटेंशियल, जो कि डिस्टर्ब अगर कोई करे ठीक तरह से तो डेफिनेटली उसमें से यू नो वी कैन मेक अ गुड स्टार्टअप. ओके, वी कैन मेक अ स्टार्टअप ग्रो इन अ वेरी वेरी गुड मैनर. सो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फाइनली, एंड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे आर जंपिंग इन डूइंग देयर ओन स्टार्टअप्स. तो दिस पर्टिकुलर सेशन जो इसके अंदर जो बात होने वाली है आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली और बिजनेस मैनेजमेंट वाली, ये इनको ज्यादा फायदा देगी यंगस्टर्स को, या फिर लेट्स से एनीवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. क्योंकि जनरली जो मैंने चीज नोटिस की है, एटलीस्ट व्हाट हैपेंस इज कि हम जैसे अभी बात करते हैं यू नो स्टार्टअप के लिए पीपल जनरली एक आधा मार्केटिंग का बंदा होता है, एक दो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, ठीक है, दे मेक अ टीम, डिस्कस एन आइडिया एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग इट. सो जो ये अप्रोच है जिसके अंदर दे इमीडिएटली स्टार्ट डेवलपिंग इट, वो बहुत गलत है. दैट हैज टू चेंज. क्यों? क्योंकि देखें जो आईटी वाला बंदा होता है ना, उसे बिल्ड करना बड़ा आसान लग रहा होता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वो क्या करता है, वो फौरन से जंप करेगा, वो लैपटॉप पे बैठ जाएगा एंड विल स्टार्ट कि अच्छा यार मैं चीज बनाने लगा. ओके, एंड लेटर ऑन वो उस टाइम पे तो वो एक्साइटमेंट के अंदर चीज बना लेते हैं, ठीक है, बट लेटर ऑन व्हेन दे लाइक टेंड टू गो टू द मार्केट, उसे बेचने की कोशिश करते हैं, देन दे रियलाइज कि यार इस चीज की प्रॉब्लली जरूरत नहीं किसी को. एंड देन दे रियलाइज कि अच्छा हम चीज जो बनानी थी वो तो डिफरेंट थी, हम डिफरेंट चीज बना बैठे हैं, ठीक है. दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. एंड एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है that everybody has every startup, okay, every startup has a product, but very few of them has customers. So it's about customers, it's more about customers, okay, it's less about the product that you have, okay, initially. So uske liye jo there are some theoretical there is some theoretical knowledge on this as well. People have written books on it, ठीक है, जिसके अंदर से जो एक पॉपुलर रूल है, it's 50% rule. Okay, that 50% of your attention should be on the product development and 50% of it should be on the business development. It's very important. But business development से भी पहले एक step है, which is customer discovery. Okay, जहाँ पे you need to find it out. Let's say you have an idea XYZ, जो भी आपके पास idea है, I'm pretty sure जो लोग देख रहे हैं उनके पास ideas होंगे ज़हन में कुछ ना कुछ. जो भी idea आपके पास है, go to the people, go out to the market and do not go to your friends and family, please. क्योंकि आपको एक honest feedback चाहिए, तो go to strangers and talk to them, tell them your idea, try to sell to them कि और देखो कि how it goes, वो उन्हें इंटरेस्ट करती भी है चीजें या नहीं करती, अच्छा ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड इसके अंदर देयर इज अ थ्योरी, देयर इज अ फ्रेमवर्क एक्चुअली जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है आमतौर पे, which is सबसे पहले as per this framework it says you need to identify the needs of the user. Okay, अब पहली चीज ये है कि आप कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे होगे जो कि दुनिया में पहले कभी बनी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. मतलब मे बी in like 0.001% cases में it's possible,
but most probably you are coming up with something that is already there in some other market, अगर पाकिस्तानी market में नहीं है, किसी और market के अंदर होगी, okay? So what you need to do, this is the easier way. I think इसमें बड़ा आसान होगा लोगों के लिए क्रैक करना कि हाँ हमें चीज बनानी क्या है, फीचर्स क्या होने चाहिए जो इनिशियली चाहिए हमें, ठीक है? और हमें बस फीचर्स का एक अंबार नहीं लगा लेना, ठीक है? हमें चीजें में निकाल के 2-3 चीजें बनानी है ताकि हम लीन रहें. वो लीन स्टार्टअप की एक थ्योरी होती है. I'll talk about that as well. सही है. So you start from identifying the needs. अब needs के अंदर भी underserved needs आती हैं. Underserved needs कौन सी हैं कि आपके जो चीज आप बना रहे हो उसका अगर यूजर पहले एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है, या उसका कोई प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू दोस पीपल हु आर यूजिंग दोस प्रोडक्ट्स एंड आस्क देम, जी आपको मसला क्या आ रहा है, इस अभी चीज आप यूज कर रहे हैं, आपको क्या इशू आ रहा है इसके साथ. ट्राई टू आस्क देम कि उन्हें कौन से मसाइल इस तरह के हैं जो कि इस वाले सोल्यूशन से रिजॉल्व नहीं हो रहे, या इस वाले सोल्यूशन के अंदर उन्हें क्या मसाइल है. अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है आपकी इंपॉर्टेंस वर्सेस सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये ग्राफ बनता है इंपॉर्टेंस वर्सेस सेटिस्फैक्शन. सो इट्स लाइक दिस, ओके. तो यू नीड टू नो कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द फीचर्स जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है और सेटिस्फैक्शन बहुत लो है. सो यू नो, हाई इंपॉर्टेंस, लो सेटिस्फैक्शन, दीज आर द फीचर्स जो कि आपको बनाने हैं. जिनकी इंपॉर्टेंस हाई है और करंट मार्केट के अंदर जो चीजें ऑफर हो रही हैं उसमें उनकी सेटिस्फैक्शन के कस्टमर्स की बहुत लो है. इफ यू समहाउ, ठीक है, ये वाली चीज बना करके सेटिस्फैक्शन लेवल भी यहाँ पे ले आए अगर उनका, ठीक है, सो दीज पीपल विल इमीडिएटली जंप ऑन टू योर प्रोडक्ट. क्योंकि इनिशियली कुछ चीजें होती हैं जो कि हर किसी को चाहिए होती हैं, एंड दे से कि ये वही बात है ना कि आपको कैंसर की दवाई बनानी है, बुखार की नहीं बनानी है. बुखार की दवाई हर किसी के पास है, बुखार होता है लोगों को तो वो इतना उसके लिए दे नेवर डाई फॉर द मेडिसिन. कैंसर जब होता है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द कैंसर, ठीक है, और उसकी दवाई आपको बनानी है, एंड दवाई दैट एक्चुअली वर्क्स. ऑलराइट. सो हाई सेटिस्फैक्शन, सॉरी हाई इंपॉर्टेंस, लो सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे जब आप ये पूरे इंटरव्यूज करेंगे, एंड इसके अंदर भी एक रूल है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इंटरव्यूज करते जा रहे हैं, नो, यू नीड टू डू जस्ट 20 इंटरव्यूज. इट्स रूल ऑफ 20. You need to do 20 interviews. अब उसके अंदर भी स्टेजेस हैं कुछ कि पहले 5 इंटरव्यू में आपको पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, वो स्पेस क्या है जिसमें मैं चीज बना सकता हूँ, ठीक है, कि मतलब मुझे बनाने किस तरफ को जाना चाहिए, ये चीज आएगी. अगले 5 इंटरव्यूज आपको यूजुअली जो है आपको बताएंगे कि क्या चीजें हैं जो कि मेरे लिए कंपैरेटिव एडवांटेज बना सकती हैं कल को, ठीक है. उससे अगले जो 10 इंटरव्यूज हैं they'll be उसके अंदर what you need to do is कि आपको अपनी जो आपकी जो पिच है, पिच कहते हैं जब भी आप एक चीज बनाते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जी स्कूल्स की जितनी भी चीजें हैं, वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर स्कूल्स, दैट्स इट. ये आपकी पिच होती है, ठीक है. इट्स यूजुअली 2 to 3 लाइंस लॉन्ग, इससे ज्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है. इसे एलिवेटर पिच कहते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर आप इमेजिन करें जी आप एक एलिवेटर में और एंड यू हैव टू गो टू लेट्स से 5th फ्लोर और 6th फ्लोर, ऑलराइट, और एक इन्वेस्टर आपके साथ खड़ा हुआ है, उसको आपने अपना आइडिया बताना है, तो अब आपके पास इतना सा टाइम है, ठीक है, जिसमें आपने उसको आइडिया बताना है. सो आपको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है अंदर, ठीक है. सो अगले जो 10 इंटरव्यूज होंगे उसके अंदर आपने इस चीज को थोड़ा सा अपना शार्प करना है कि अच्छा मैंने इसको बताना किस तरह से, चीज बेचनी किस तरह से, चीजें लिखते जाना साथ साथ ही. और साथ आपको फीचर सेट में मिलेगा कुछ चीजें फीचर सेट के अंदर होती हैं मस्ट हैव्स. मस्ट हैव जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फीचर की इंपॉर्टेंस हाई होगी और सेटिस्फैक्शन लो होगी, आपकी मस्ट हैव्स हैं, ठीक है. अब कुछ फीचर्स होंगे जिनके अंदर वो कहेंगे जी ये चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो लो इंपॉर्टेंस, हाई सेटिस्फैक्शन, ये है नाइस टू हैव्स, डिलाइटर्स कहते हैं इनको, कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट के अंदर हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे मतलब उतना मसला नहीं है अगर ये नहीं भी होंगे तो. इसके लिए कस्टमर वेट भी कर लेगा. आप उसे कहेंगे जी कि सर आप अभी ये चीज यूज करना शुरू कर रहे हैं, अगले 4 महीने में या 2 महीने में हम आपको ये चीज बना देंगे, तो कहेगा ठीक है, ओके, क्योंकि वो इतनी बड़ी नीड नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो नीचे है, लो है, ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी पूरी बन गई. अब नाउ एट दिस पॉइंट यू नो दैट कि अच्छा जी मुझे बनाना क्या है. फिर साथ ही साथ एक और एक्सरसाइज भी है जो कि जनरली तो मुझे बताएं अभी यहाँ तक अभी जो आपने सारा प्रोसेस बताया, क्या आप समझते हैं
कि इसी प्रोसेस के तहत ही काम हो रहा है या जो एक्चुअल सिचुएशन इसके ऑपोजिट है और उसको चेंज होने की जरूरत है? या सो मैंने इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस एज पर माय एक्सपीरियंस द पीपल आई मीट, ओके, द यंग co-founders that I meet, none of them actually try to follow this. वो एक एक्साइटमेंट होती है कि यार अपनी हम्म। चीज करनी है, अपनी चीज करनी है, अपनी चीज बनानी है, अपनी चीज बनानी है, ठीक है। वो हम्म। उसके अंदर बस चीज बना रहे होते हैं बैठे हुए। एक्चुअली मैंने जो एक चीज देखी है वो क्या है कि अगर कोई पर्सन स्किल्ड बेस्ड एजुकेटेड है, उसके पास कोई स्किल है, उसने प्रोडक्ट बना ली अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें आ गई, लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचानी है या अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी है, दो अलग अलग हो गई ठीक है, चीजें। फिर ठीक है, क्या होता है कि जो ठीक है। स्किल्ड बेस्ड पीपल हैं या वो लर्निंग उनका, उनकी एजुकेशन वो सब कंप्लीट है, उन्होंने प्रोडक्ट भी बना ली है या अपनी सर्विस मेंटेन कर ली है, उनको डिजिटली उसको डील करना और यहाँ एडवर्टाइज करना नहीं आता। मे बी मैंने जो देखा है ये बिल्कुल एक रीजन है कि वो अब जो यंग जनरेशन है वो जो लर्निंग प्रोसेस में है उसने डिजिटली तो सब कुछ सीख लिया, बट वो जो प्रोडक्ट, वही जो भी आप बात कह रहे हैं, वो मिसिंग है। दोनों में से एक चीज, एक हमारी साइड मैं वो है जो कि यहाँ तक वो उनके पास स्किल्स हैं या वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या उनके पास सर्विस है, उनको डिजिटली मार्केट करना नहीं आ रहा। यंग जनरेशन डायरेक्टली वहां पे चली गई डिजिटल साइड पे, उसके पास वो स्किल्स नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट बनाए या वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करके उनको, तो हम्म, इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए अब ये बात है कि जब आप चीज वो बनाएंगे जिसकी एक्चुअली वहां पे नीड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसकी हम्म। नीड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हम्म। तो आपका जो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है ना, जो आपका इनिशियल कस्टमर्स लेने वाला प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आसान हम्म। हो जाता है। सही, वो थोड़ा बिल्कुल सा सही। आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों को एक चीज जो है उनको नजर आ रही होती है कि अच्छा यार ये चीज मुझे जो है ना इमीडिएटली चाहिए। वही बात है कि सही। कैंसर की दवाई है, हम्म। ये लोग फौरन से मांगेंगे, खुद भी मांगेंगे आपसे, इसके बारे में ठीक तो है। अभी देखिए, आप और भी मीम्स बात देखते होंगे, आप भी मीम्स देखते होंगे हाँ जी, काफी के जो है अपनी प्रोडक्ट बनाओ और देन उसको सेल करने के लिए वो वाला प्रॉब्लम भी बना दो, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो नो ये जो इट्स नॉट दैट हमारा इजी। ह्यूमर देखिए एलिमेंट है ना हमारे पाकिस्तान में, वो भी उसको सैल्यूट उन देखिए लोगों को जो वो बनाते हैं डिमांड मीम। डिमांड जनरेशन इतनी इजी नहीं होती है, डिमांड हम्म। जनरेशन टेक सम टाइम, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस भी ऐड करते जाते हैं, देन जो बिल्कुल है बिल्कुल हम वो बिल्कुल। हमारे जो हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन करें। अहमद मंजूर साहब जी, वेलकम सर, हमारे सर हैं अहमद मंजूर साहब, वो पूछ रहे हैं हाउ टू गेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोसीजर या फिर स्टेप्स, आप काइंडली ऑलराइट, बताइए जी, इसके ठीक बारे है। में बताइए। और क्या पूछ रहे हैं, हमाद साहब कह रहे हैं ग्रेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और जिशान शानी कह रहे हैं एक क्वेश्चन था मैम आपसे, जी काइंडली क्वेश्चन पूछिए, हम यहाँ बिल्कुल सुन रहे हैं और आपके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, करिए आप क्वेश्चन। जी अब बताइए आप अच्छा, जो। जहां तक बात है, सो इन्वेस्टमेंट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इन्वेस्टमेंट से मैं आऊंगा, डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। हम्म। इन्वेस्टमेंट्स अभी मैं आई गेस शुरू करूंगा तो वो इट्स अ वास्ट, पहली बात है टॉपिक, सही है। देयर आर अहमद सर्टेन मंजूर डिफरेंट साहब टाइप ऑफ हमारे इन्वेस्टमेंट। सर माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस्ड, और वो बड़ा बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच अहमद सर, वेलकम आपको हम करते हैं अपने सेशन में, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलें, ओके, सो अगर मैं अब मुझे आप बताएं कि शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट या फिर मैं जिस अगर पे बात अगर कर आपके ऑलरेडी पॉइंट्स में वो एडिड है कि लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले, देन तो हम उसको वहीं पे रखते हैं। या अगर वो नहीं, आपके मैं पॉइंट्स में डेफिनेटली इस ऐड बारे में नहीं है तो ठीक मैं है, इस बारे में अगर बात वो करूँ। आपके पॉइंट वो उसमें एडिड है तो देन हम वो उसी टाइम पे करें। नहीं नहीं, डेफिनेटली आई एम गोना डिस्कस दैट एज वेल, ओके। हम्म। क्योंकि इवेंचुअली हर स्टार्टअप का गोल फिलहाल यही होता है, पहले तो ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन इज लाइक गेटिंग सम कस्टमर्स, ठीक है, और उसके हम्म। बाद गोइंग टू सम इन्वेस्टर और उसको दिखाना, एंड वहीं से आई थिंक द रियल सक्सेस स्टार्ट वहां फ्रॉम भी देयर। थोड़ी सी वकालत भी ऐड हो जाती है, आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा सा कुछ शॉर्ट कोर्सेज वकालत काफी जो ज्यादा ही ऐड होगी, आपके हर पॉइंट पे वकालत ऐड होगी, आई इट्स थिंक नॉट पहले आप जस्ट एलएलबी पहले एलएलबी कीजिए, बाकी सब कुछ इसके बाद कीजिए। नो नो, अब आपको ना बड़ी इजीली, देखें आप तो एक स्टार्टअप भी है, आई नो दोस गाइस, आई थिंक इट्स वकालत और समथिंग, आई विल शेयर द लिंक एज वेल, ठीक है। You श्योर। can get your legal services from them and they are very very kind of affordable, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रोवाइड करते हैं आपको। जी श्योर। वैसे इन्वेस्टमेंट में जाने सबसे पहले समथिंग दैट यू एवरी स्टार्टअप शुड डू, और कोई और इन्वेस्टमेंट करेगा भी नहीं एक्चुअली अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड सबसे पहले रजिस्टर करवानी होती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि पार्टनरशिप्स के साथ जा रहे होते हैं,
ठीक है. सो स्मॉल डिफरेंस पार्टनरशिप्स के अंदर जब तक आप प्राइवेट नहीं होते, पीवीटी लिमिटेड नहीं होते जी, स्मॉल डिफरेंस ये है कि लाइबिलिटी जो है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लाइबिलिटी आपके ऊपर होती है. मतलब अगर लेट्स से जी कंपनी डूबती है तो आपके ऊपर आता है कि जी आपने 20-30 लाख रुपए जितना भी देना जी आपने देना है. एंड अगर प्राइवेट लिमिटेड होती है तो और कंपनी फिर एज अ इंसान ही डील हो रही होती है. लेट्स से सूप की बात अगर करते हैं, सूप एज अ इंसान डील हो रहा होगा एंड इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट मनी इन सूप, नॉट इन यू. ओके, सो अगर कंपनी डूबती है तो सूप के साथ इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाता है, आप लायबल नहीं होते. ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स. खैर आगे बात करते हैं. मैं अभी मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले वो डिसाइड करने में कि आपने चीजें बनानी कौन सी हैं. ठीक है, नाउ लेट्स से जी आपने बैठे, आपने वो चीजें बना ली. अब जब आप इन 20 लोगों के पास जा रहे हो ना इंटरव्यू करने के लिए, तो डेफिनेटली ये आप साथ साथ अपनी छोटी सी कस्टमर बेस ही बनाते जा रहे हो. इनिशियली 10-15 क्लाइंट आपको यहाँ से मिल रहे होंगे. ठीक है, कि आप उन्हें कहेंगे सर, अच्छा सर हम ये चीज बनाना चाह रहे हैं, हम ये बना रहे हैं जी, हम आपको फ्री में देंगे, आप यूज करना चाहेंगे ये. क्योंकि इनिशियली आपको यू हैव टू थ्रो योर थिंग आउट, ताकि आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ सके कस्टमर का, जिसके ऊपर आप आगे अपने प्रोडक्ट को मजीद पॉलिश कर सको. बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आप इनिशियली अपनी यहाँ पे छोटी मोटी सेल्स कर रहे होते हो एंड एक मर्तबा इट्स अबाउट नेलिंग योर नीश. ठीक है, अब जब आपने चीज, लेट्स से जी आपने 20 इंटरव्यूज किए और अब आपके पास 8 से 10 फीचर्स निकल आए हैं. अब इनमें से भी यू हैव टू चूज कि अच्छा इसमें से, अब जाहिर बात है मार्केट के हर जगह पे अब थोड़ी मार्केटिंग की तरफ बात आने लगी है कि मार्केट के सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, जो भी मार्केट आप टारगेट कर रहे हैं उसमें सेगमेंट्स होते हैं. जैसे हम अगर स्कूल्स को टारगेट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करते हैं, तो हमारे पास उसके अंदर पहले प्री स्कूल आता है, वो एक सेगमेंट है. फिर हमारे पास एक सेकेंडरी स्कूल आता है, प्राइमरी स्कूल आता है, वो एक सेगमेंट अलग से होता है. फिर हमारे पास ये कॉलेजेस आ जाते हैं, वो एक सेगमेंट अलग से है. और इन जितने भी सेगमेंट्स हैं, इनकी हर किसी की अपनी अपनी नीड्स है. मतलब ठीक है 30-40% ऑफ द प्रोडक्ट, उनकी जो नीड्स है ओवरलैप होती हैं बाकियों के साथ भी, लेकिन बाकी जो है कुछ नीड्स 50% या 40%, 30% वो डिविएट करती हैं. मतलब जो प्री वाला बच्चा है, ठीक है, उसको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसके मार्क्स किस तरह के हैं, क्योंकि वो वहां पे मार्क्स मैटर नहीं कर रहे होते. प्री वाले बच्चे के लिए मैटर कर रही होती है उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट. तो यू नीड टू बिल्ड समथिंग जो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ पेरेंट्स को भी फोकस रखे, टीचर्स के लिए भी इजी करे चीज को. तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है. जब आप नीचे आए 9th-10th के अंदर आ जाए, तो वहां पे पेरेंट के लिए रिजल्ट बहुत मैटर कर रहा होता है, अटेंडेंस बहुत मैटर कर रही होती है. ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर द सेम थिंग. तो यहाँ पे कुछ कुछ नीड्स जो है वो सबकी मिलती भी है, कहीं कहीं पे डिविएट होती है. तो ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हम इसको कहते हैं. अब आपको इनिशियली अगेन हमें उस टाइम पे फील हो रहा था जब हम कर रहे, देखें आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि हम इसको भी पकड़ लें, इसको भी पकड़ लें, हम ये क्लाइंट भी ले आए, ये क्लाइंट भी ले आए. वो होता क्या है कि हम डिफरेंट सेगमेंट में से क्लाइंट पकड़ते हैं और वो एक अंबार बनता जाता है. और हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम है, जो कि टीम नहीं है अभी, आई एम प्रीटी श्योर 2 से 3 लोग ही होंगे इनिशियली, क्योंकि आपका स्टार्टअप है और अभी आप बिल्कुल यू आर यू नो स्टार्टिंग ऑफ, न्यूज नहीं आ रहे आपके पास. ठीक है, तो टीम आप नहीं मैनेज कर सकते. उस बंदे के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा. एज अ रिजल्ट वो चीजें जो बनाएगा वो हाफली बेक्ड होंगी. ठीक है, मतलब वो पूरी नहीं होंगी, उसमें यूज केसेस सारे कवर नहीं हुए होंगे. और ये आपके पास विद इन 4-5-6 months के बाद when you'll see back at the product, you'll see कि यार ये मैंने क्या कर दिया. उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा आमतौर पे कि यार मुझे खाली एक कैटेगरी पकड़ के उसको अच्छी तरह से मुझे फुलफिल करना चाहिए था, उसके बाद मैं दूसरे पे आता. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने मार्केट सेगमेंट अपना जो है, जिसे आप नीश भी कह सकते हैं, मार्केट सेगमेंट भी कह सकते हैं, उसको आपने फाइनलाइज करना है कि हमने किस वाले मार्केट सेगमेंट को अभी सेल करनी है. इसकी जनरली ये होता है कि आपने देखना वो सेगमेंट है जो बड़ा है, पहली चीज, जिसमें लोग एक्चुअली द पीपल विल बी रेडी टू पे. ठीक है, उस तरह का सेगमेंट जिसके अंदर वाकई में पैसा बन सकता है. ठीक है, और इसमें साथ साथ जिसमें ग्रो करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है. ग्रो करना हर चीज के अंदर ही मुश्किल होता है, क्योंकि दैट एक्चुअली आपका प्रोडक्ट आपके साथ आता है, आपकी सेल्स स्ट्रेटजी आपके साथ आती है, सब कुछ आपके साथ आता है. सो यहाँ पे आपने लेट्स से आपने मार्केट सेगमेंट डिसाइड कर लिया. अब मार्केट सेगमेंट डिसाइड करने के बाद देयर कम्स इन योर बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. ठीक है, अब देयर आर सम पीपल बिलीव कि जी चीज बस बनानी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल
वी हैव अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल पर्सन जो एप्पल के सीईओ थे, ठीक है. He says कि जी if I ask the customer would say I want a faster horse, ठीक है जी. तो he says just build it. उनकी ये थ्योरी थी. So अगर उनके आप प्रोडक्ट्स देखें तो वो B2C मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. B2C is business to customer market, okay. और एक होती है B2B मार्केट जिसने बिजनेस टू बिजनेस होना होता है. जैसे एग्जांपल है जी कि मैं अगर जैसे हम B2B हैं जी, हम एक बिजनेस है और हम एक स्कूल को बेचते हैं. स्कूल इज अ बिजनेस, ओके, हम उसको बेचते हैं. अगर यहीं पे हम डायरेक्ट पेरेंट्स को बेच रहे होते तो वो हमारा B2C हो जाता, ठीक है, वो सेगमेंट हो जाता. B2B के अंदर आमतौर पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि वर्क फ्लोज काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, प्रोडक्ट बड़ा होता है तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना बाद में अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स में जंप करते रहेंगे इनिशियली. तो सबसे पहले तो ये, ठीक है. अब आपने लेट्स से जी अपने फाइनल कर लिया, अब आपकी बारी आई बिजनेस डेवलपमेंट की, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की. So saying no is a vital part of business strategy, of your business development strategy. And yeah, this is not something that I'm saying, okay, this is something that again Apple CEO has said, okay, he mentioned this in his book as well. Having a business strategy means learning to say no. कहाँ पे आपने देखना है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते तो अभी आप इनको ना कह दें कस्टमर्स को. This is very important, okay. So आपके लिए जो है आपने मार्केट सेगमेंट कर लिया, फाइनल कर लिया, ठीक है. अब आपने स्ट्रेटजी बनाई एंड आपने उसी पे फोकस रखना है. आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल टू कोट ओवर हियर. मुझे यकीन है कि आप लोगों को ने अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप है हेल्थ वायर के नाम से, ठीक है. अ सीनियर ऑफ माइन फ्रॉम लम्स एज वेल, ओके. इन्होंने किया तो दिस गाय, उन्होंने जो इनिशियली प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उन्होंने जाके बेचा सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट को और डर्मेटोलॉजिस्ट को. हालांकि डॉक्टर्स और कितने तरह के होते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी वो बेचने जाता होगा, जहां पे वो जाता होगा उसको दो डेंटिस्ट मिलते होंगे, बाकी जनरल फिजिशियंस इस तरह के लोग मिलते होंगे, राइट. लेकिन उसने उनको नहीं बेचा. उन्होंने सिर्फ he actually stick to the niche डेंटिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. क्योंकि वो बनाने के प्रोसेस के अंदर, उनको बेचने के प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट मैच्योर होता गया आहिस्ता आहिस्ता. प्रोडक्ट के मसले खत्म होते गए, प्रोडक्ट मैच्योर होता गया एंड वंस द प्रोडक्ट वाज मैच्योर देन ही सेड कि अच्छा अब बेचना शुरू करो बाकियों को भी. तो नीश टू नीश आप जो है आहिस्ता आहिस्ता सेल करते जाते हो क्योंकि वर्क फ्लोज कहीं ना कहीं डिफर कर रहे होते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर एक स्ट्रेन आता है एक तरह से, और वो प्रोडक्ट जो है ना वो डिफरेंट तरह के फीचर्स का बस एक. नहीं, आपकी ये बात से तो मैं एग्री करूंगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं हमें वो चीजें देख के लग रही होती हैं बहुत आसान, जब प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हमें सोचा ही नहीं होता और वो उसमें, और समटाइम जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम होता है ना कि हम इतने टाइम में ये कर लेंगे, प्रैक्टिकली उसमें वैसा नहीं होता, उससे डबल टाइम भी लग जाते, चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं. तो स्टार्ट में स्टार्टअप जब भी किसी बिजनेस का किसी काम को, तो 5 to 6 मंथ तो ऑब्वियसली उसको समझने में और वो एक्सपीरियंस जो होता है एक्चुअली वो फिर बेस बिल्ड करता है. और अभी जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात है. और ऐसी सिचुएशन में जब ओवरबर्डन के बाद हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस अच्छी नहीं जाती तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कस्टमर्स पे, वो जो पब्लिसिटी, आई थिंक जो वो एडवर्टाइजमेंट कस्टमर टू कस्टमर जो नेक्स्ट वो जो फैलती है वो ज्यादा फीडबैक पावरफुल होता है और वो गिरा सकता है या बना सकता है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. आप देखें, आप मार्केटिंग के अंदर आप पढ़ते भी हैं, आई एम श्योर लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है दैट इज कस्टमर्स वर्ड ऑफ माउथ, ओके. सो उसे कस्टमर यहाँ पे साथ साथ हम कमेंट्स भी थोड़े से ऐड करते जाते हैं. आसिफ साहब पूछ रहे हैं सर ये टेक्निक सब बिजनेस में सेम होंगी या टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग होंगी, ये एक तो बताइए. सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं आसिफ साहब, आई सॉ मेनी बिजनेसेस फ्लॉपिंग इन सेम वे मे बी ड्यू टू टारगेटेड एरियाज और पॉसिबल अदर फैक्टर्स. जी आपकी बात मैंने तो कहा ही है, ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ऐसा जो है वो होता है जब वो इस तरह से माइंडसेट के साथ कहता है. जी इनके क्वेश्चन का आंसर करें. और इन्होंने कहा कि देखें डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिहाज से ये जी एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ मैं आपको, एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको कि दिस डजंट मैटर कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. चीजें जो डिफरेंट होती हैं हर मार्केट सेगमेंट के लिहाज से, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है कि अच्छा इसको बेचना कैसे है, यार इसको मैंने बेचना है लेट्स से जी फीचर एक्स के साथ बेचना है, फीचर वाई के साथ बेचना है, वो डिफरेंट होगा. बट ये प्रोसेस जो आपने फॉलो करना है कंपनी बनाते हुए, एक स्टार्टअप को बिल्ड करते हुए, या अपनी कस्टमर बेस इनिशियल ट्रैक्शन जो आपने गेन करनी है उसको बनाते हुए, दैट वुड बी सेम. ठीक है. देखो ऑल दीज थियरीज, ठीक है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
these are proven theories, okay? People have tried this, okay, and a lot of people have tried this, and there's a lot of have been written on this as well. तो literature में अगर आप जाएं, you can find a lot of books as well, जिसके अंदर सारा कुछ मेंशन किया गया है. तो आई थिंक जो लोग कर चुके हैं, जो करके गुजरे हैं, वी शुड फॉलो अप टू सम एक्सटेंट. यस, देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर. ये स्टार्टअप सक्सेस के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देखिए आपको मार्केटिंग बनना लोग सिखाते हैं, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट लोग सिखाते हैं, लेकिन बीइंग अ सीईओ कोई नहीं सिखाता है कि सीईओ कैसे बनना है. नो वन टीचेस यू दैट. इट्स ऑन यू एंड इट्स ऑन योर डिसीजन मेकिंग पावर्स, ओके. इट्स ऑन योर नॉलेज एज वेल, जो कि आप प्रैक्टिकली गेन करते हो मार्केट में जाके, या बुक्स का भी आपने कुछ उसको मिक्सअप करके एक चीज बनती है. तो सीईओ बनना कोई सिखाता नहीं है यार. दिस जस्ट, ये तो बात आज मैं भी कह रही थी. अभी तो आप बात कर रही हैं ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारी अक्सर टैलेंट एजेंसीज हैं जो कि एक्टर्स को एक्स्ट्रास वाले सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बनाती हैं, स्टार नहीं बनाता कोई. तो ये मैं आज ही बात कह रही थी. आपने उसी को ये डिजिटली आपने इसको किया जी. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आइए. नेक्स्ट जो पॉइंट आप डिस्कस करना चाह रहे थे जी. खैर, सो कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जी अच्छा जी, अब आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब आपकी ग्रोथ की बारी है. नाउ यू गोना ग्रो, ओके. अब आपने लेट्स से जी इनिशियल जो आपका इनिशियल 30-40 कस्टमर जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उनको टारगेट करके आप चीज अब बना लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज यू समहाउ नीड टू मल्टीप्लाई दिस कस्टमर बेस. मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है कि एक तो अगर आपके कस्टमर का अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है ना, तो ये आपके लिए इट्स अ बिंगो, ओके. यू कैन गेट ग्रोथ एनीवेज. आपको लोग खुद कॉल करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, जी हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमने फलाने से सुना था, फलाने से सुना था. एंड वी थिंक ये लोग कनेक्टेड नहीं होते, लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, हर बिजनेस के लोग कनेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी लिहाज से आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, अब आपको उन्हें उसकी तरफ पुश करना है. सो इसके लिए जनरली कंपनीज है जिस तरह से यूज करती हैं एक चीज, एक इसको आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट. इट्स खैर, मैं इसको वायरल लूप्स कहते हैं हम. जो ये रेफरल्स वाली चीज होती है ना, कि रेफर करना किसी कस्टमर का किसी और कस्टमर को, इससे हम कहते हैं वायरल लूप. एक वायरल लूप क्रिएट करना कहते हैं. सो इसके लिए आपने सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे सामने करीम की है. ठीक है, करीम डिड दिस. अगर आप देखें, करीम में रेफर अ फ्रेंड एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड फॉर दैट. सो रेफरल में हमेशा रिवॉर्ड होता है कोई ना कोई. ठीक है, ये रिवॉर्ड डिफर कर सकता है. मतलब देखें, आप एक केस के अंदर ये रिवॉर्ड जो है, करीम के केस के अंदर रिवॉर्ड है जी आपको जी 100 क्रेडिट्स मिल जाएंगे राइड के, राइट, या मैं आपकी एक राइड फ्री हो सकती है, कुछ भी ऐसा. अब अगर आप लेट्स से जी अगर मेकअप की कोई चीज बेच रहे हैं, तो आपने देखा होगा ऑन मेनी ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर जी कि आपने फ्रेंड को रेफर करें, 3 फ्रेंड्स रेफर करें, आप अगर हमसे कुछ खरीदेंगे तो आपको हम ये चीज जो है ना फ्री में दे देंगे. हाँ, तो मैं अपने सैलून पे भी ऐसा करती हूँ ना. अब आप ब्राइडल मेकअप करवाइए, साथ 5 मेकअप आपको फ्री मिलेगा. जो रेफर करेगा उसके लिए 5 मेकअप फ्री. ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी इसको, दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपने इसको वायरल लूप्स कहते हैं हम. ठीक है, कि आपने अपने कस्टमर को रिवॉर्ड देना है कोई ना कोई, टू रेफर यू टू द अदर क्लाइंट एज वेल. अब आपके जो एक ग्रोथ का तरीका ये है. बाकी ट्रैक्शन इसको ट्रैक्शन कहते हैं. ग्रोथ गेन करने को, कस्टमर गेन करने को ट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, टेक्निकल टर्म जो इसकी है. इसके अंदर देयर आर 19 टोटल चैनल्स. ठीक है, 19 चैनल्स आपके पास ट्रैक्शन के, जो कि जिसमें से अब वंस अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जी आपको नहीं पता होता इनिशियली कि आपके लिए कौन सा चैनल जो है वो काम करेगा. दिस चैनल इंक्लूड्स कोल्ड कॉल्स. ठीक है, कोल्ड ईमेल्स. दिस इंक्लूड्स डोर टू डोर जो विजिट्स होते हैं. ठीक है, वो. दिस विल इंक्लूड सोशल मीडिया मार्केटिंग. दिस विल इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. दिस विल इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ आपके डिजिटल पीआरस. ठीक है, वो. दिस विल इंक्लूड द ईमेल्स. उनको जो है आप प्रमोशनल ईमेल्स जो भेजते हो, न्यूज़लेटर्स भेजते हो. इसमें ये 19 टोटल चैनल्स हैं. ठीक है, आई कैन शेयर द नेम ऑफ अ बुक as well if you like, guys would like to read it. Traction naam hai book ka. Gilbert, I guess the name of the writer is, wait a minute, just let me tell you that. Okay, just give me a minute. All right. जितने लोग भी सब कमेंट्स कर रहे हैं, ये जब सर अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो देन जो है सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपके जरूर देंगे प्रोग्राम के एंड में. ठीक है, so this book कमेंट्स मैं देख रही हूँ, सबके कमेंट्स देख रही हूँ मैं, और जरूर जो है यहाँ पे आंसर करें. Okay, so the name of the book is Traction. Okay, written by Gilbert Weinsberg. Yeah.
Gilbert Weinberg. Okay, he mentions these 19 traction channels. Now, अब आप जब इनिशियली एंटर होते हो मार्केट के अंदर, हमने जैसे किया, I'll share our example as well, ठीक है, हमने इनिशियली कोल्ड ईमेल्स करना शुरू की. सो इसके अंदर एक फ्रेमवर्क है, वंस अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, बट इसमें एक फ्रेमवर्क है, बुल्सआई फ्रेमवर्क. अब ये फ्रेमवर्क जो है, ये जिसने किताब लिखी है उसने ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है, बिकॉज ही हैज वर्कड ऑन सेवरल कंपनीज, और उनकी ग्रोथ जो उसने लीड की है और बड़ी कंपनीज की ग्रोथ लीड की है, तो उसने वहां से एक्सट्रैक्ट करके बनाया. बुल्सआई फ्रेमवर्क है. इसमें वो कहता है कि आपने 3 इनिशियली ट्रैक्शन चैनल चूज करने हैं, 3, जो कि हमारे केसेस में व्हाट वी डिड, कोल्ड ईमेल्स 1, कोल्ड कॉल्स 2, और तीसरा हमने डोर टू डोर इंटरव्यू, डोर टू डोर विजिट्स. मतलब हमारी एक टीम जो थी वो स्कूल टू स्कूल जा रही थी. एट द वेरी सेम टाइम हमने क्या किया था, हमने लाहौर को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों के अंदर. एक ये हमारा जो है ये जोहर टाउन से उस साइड वाला था, ठीक है, एक हमारा मुस्लिम टाउन से इस तरफ वाला था, एक डीएचए और ये मुस्लिम टाउन को मिला के. सो हमने टीम को भेजना हमारे लिए ज्यादा इजी था ये डीएचए वाली साइड के ऊपर, ठीक है, डीएचए वाली साइड के ऊपर कैवेलरी ग्राउंड इस साइड पे. सो टीम हमारी यहाँ पे जा रही थी, और जो डीएचए से जो जोहर टाउन वाली साइड वाले स्कूल से वी वर कॉलिंग देम, ठीक है, हमारी टीम वहाँ पे कॉल्स करती थी टू गेट सम मीटिंग्स, और जो थर्ड एरिया वाले लोग थे उनको हम ईमेल्स ड्रॉप कर रहे थे. अब हमने ये देखें, हर ट्रैक्शन चैनल के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग ये चीजें रन कर रहे होते हैं, लोग सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करी जा रहे होंगे, लेकिन कोई टारगेट नहीं होगा, वो टारगेट के बगैर रन करी जा रहे होंगे, कोई टेस्ट करने के लिए कि यार ये मेरी चीज सही चल रही है नहीं चल रही, क्या मैं, क्योंकि देखिए मार्केटिंग के अंदर ना बड़े ही सॉलिड किस्म के टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टेंजिबल. क्या है जी, पहली सिंपल सी बात है जी, इस आपके इस वाले जो ट्रैक्शन चैनल है कितनी लीड्स जनरेट हुई, पहली चीज. फिर आपके पास जी पर लीड या फिर कह लें जी पर एक्विजिशन आपकी कॉस्ट क्या थी, एक कस्टमर आपको कितने रुपए में पड़ा, ठीक है. और तीसरी चीज, अच्छा उस कस्टमर की लाइफ साइकिल वैल्यू क्या होगी. आप सपोज करें मैं मार्केट करता हूं अपनी चीज को, ठीक है, और उस पर 250 रुपए लगता है एक बंदे को लाने पे, और उस एक बंदे से मैंने कमाना है अगर 50 रुपए है, तो मेरे पास 200 रुपए का लॉस है यहाँ पे साफ साफ. सो दिस सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल. सही है. सो ये आपने सबसे पहले टेस्ट फ्रेमवर्क जो है, ये क्वेश्चंस कुछ आपने रेडी कर लेने, कोई भी चीज शुरू करने से पहले ट्रैक्शन लिहाज से ये क्वेश्चन का सेट आपने शुरू करने के बाद 3 चैनल्स या 3 से कम 2 कर सकते हैं आप, ठीक है, 3 चैनल्स आपने जो है आइडियली 3 चैनल्स आप रन करें इन पैरेलल, और आपने ये तीनों चीजें नोट डाउन करते जाना है हर 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, जितना भी आपने करना है, ठीक है. यूजुअली हफ्ते बाद होता है या फिर मिड वीक हो जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है, 2 बार ट्वाइस अ वीक हो जाएगा. यू नीड टू नोट डाउन दीज नंबर्स कि जी क्या हो क्या रहा है, इसके अंदर मुझे कितनी लीड्स मिल रही हैं, उसमें से क्वालिफाइड लीड्स कितनी आ रही हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ ये भी होता है कि MQL क्या है, SQL क्या है, ठीक है, तो इस तरह की लीड्स भी आती हैं. अब इसमें से आपके पास खैर लीड्स कितनी आ रही हैं, उनमें कितने पैसे लग रहे हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना. तो हफ्ते के बाद यू नीड टू गेट बैक टू दीज क्वेश्चंस कि जी अच्छा क्या चल रहा है. अब यहाँ पे एक और टर्म आएगी A/B टेस्टिंग की, ठीक है. आई एम श्योर जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी उनको अच्छी तरह से पता होगा, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी अपने अगर इनिशियल सब्जेक्ट्स के अंदर उनको पता होगा. A/B टेस्टिंग इज ये कि मैं स्ट्रेटजी A स्ट्रेटजी B एक साथ चलाता हूँ एक तरह की कंडीशंस के अंदर, और मैं कंपेयर करता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी ने बेहतर परफॉर्म किया, और फिर मैं वो चूज कर लेता हूँ. लोग ये आमतौर पे लैंडिंग पेजेस के अंदर करते हैं, जो अपने पेजेस बनाते हैं लोग वेबसाइट्स के, उसके अंदर करते हैं. तो आपने अब इन तीनों स्ट्रेटजीज को रख के देख लिया कि कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है. इसमें से टॉप वाली आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और जो नीचे वाली 2 हैं उनको रिप्लेस कर देना है अगली 2 से. सो लेट्स से जी हमने ये 3 किया, उसके बाद हम अगली 2 पे चले गए. अच्छा अगली 2 क्या हो सकती है, एक हमने न्यूज़लेटर भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, और एक हमने क्या किया कि हमने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी जो हमारे पास नंबर की डाटाबेस बन रही थी, हमारे फोन हमारे ऐप की जो भी अपडेट आती थी ना, हम वो व्हाट्सएप कर देते थे सबको, उसकी वीडियो बना के, छोटी सी अच्छी सी वीडियो बना के, इस फीचर से आपको ये फायदा होगा, इस फीचर से ये होगा वो होगा, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं. हमने एक वीडियो बनाई अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, ताकि यूजर को ये पता हो कि अच्छा ये दिखा रहा है मुझे चीज, खाली बता नहीं रहा, क्योंकि ट्रस्ट गेन होता है, ठीक है. तो हमने ये करना शुरू किया. अब इसमें से हुआ ये कि जो डोर टू डोर विजिट्स थे, हमारा ये दिस वर्किंग वेल फॉर अस. ईमेल्स कोई खोलता ही नहीं था, और कॉल के ऊपर हमें मीटिंग देते नहीं थे लोग आमतौर पे, ठीक है. सो व्हाट वी डिड, जब हमने व्हाट्सएप करना शुरू किया, उन्हीं लोगों को वीडियोस बना के प्रोडक्ट की
तो इसका रिजल्ट काफी बेहतर आना शुरू हुआ। तो अब हमें पता लग गया अच्छा यार ये कि डोर टू डोर हम जा रहे हैं और ये व्हाट्सएप वाली चीज जो है इट्स वर्किंग। तो हमने तीसरी ड्रॉप कर दिया चैनल, फिर उस तीसरी की जगह हम रिप्लेस करते गए। सो दैट्स हाउ वी नो, दैट्स हाउ यू नो कि आपने किस ट्रैक्शन चैनल के साथ आपने ग्रो करना है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है, एक टू रियलाइज एंड टू सेट अप द टेस्ट एज वेल, कि आपने टेस्ट करने हैं चीजों को, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे ना तो आपको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। मतलब यू नेवर नो कि आपके लिए आइडियल चैनल कौन सा है ग्रोथ का, कि आपको मतलब क्या है कि सोशल मीडिया ज्यादा हेल्प मिल रही है, आपको डोर टू डोर विजिट से ज्यादा हेल्प मिल रही है, आपको नहीं पता होगा। तो दिस विल, अच्छा, इसका यहाँ और पे ये हम थोड़े साथ में अपने कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं ताकि साथ साथ आप वो भी जो है आंसर करते जाएं। आसिफ साहब पूछ रहे हैं, I am from CS department. Many students start a software house, but they fail to retain their business. So should we create a problem first or find problem to grow our business? Problem create करें कि problem find? हाँ नहीं, देखिए सेटिंग अप अ सॉफ्टवेयर हाउस वाली जो इंडस्ट्री है इसमें आप टैप करने जा रहे हैं, देखिए इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर देयर आर मेनी प्लेयर्स, पहली चीज तो ये है। और दूसरा ये देखो इट कांट बी अ स्टार्टअप, ठीक है, इट्स जस्ट अ बिजनेस दैट यू आर लॉन्चिंग, ओके। अब वही बात है कि यहाँ पे आपकी यूएसपी क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। स्टार्टअप्स का जो ये खास तौर पे ये बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस वाला जो बिजनेस है, ठीक है, दिस वर्क्स थ्रू इफ यू हैव सम कनेक्शंस आउटसाइड पाकिस्तान, जहां से आपको डॉलर आए, जहां से आपको वो वाले, क्योंकि अगर तो इफ यू हैव लाइक 2-3 फ्रेंड्स, ठीक है, आई वुड सजेस्ट पार्टनर अप विद देम, उनको कोई ना कोई एक्विटी आप दें एंड उनको कहें कि आपने हमें प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट करने हैं। होगा क्या कि वो पार्टनर्स उनको देन वन वे ऑफ डूइंग दिस सक्सेसफुली इज कि वो पार्टनर्स जो है जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, वहां पे वो अटेंड करें जाके, एक आपकी कंपनी का फ्लायर बना हुआ हो, आपकी कंपनी का एक वहां पे डेस्क सेटअप हो, ताकि वहां पे लोग आपके पास आए प्रोजेक्ट्स लेके। दिस हाउ इट वर्क्स। देखिए सॉफ्टवेयर हाउस वैसे तो दो लोग अगर बिठा के या 4-5 लोग बिठा करके आपने करना है और आपने फिर लोकल क्लाइंट का काम उठाना है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट, ठीक है। और यही बात आपके वाली बात है कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। द रीजन बीइंग इज कि आपकी जितनी कॉस्ट है वो आपकी कवर ही नहीं हो रही होती है लोकल कस्टमर्स से काफी कॉस्ट कवर करना पहली बात है, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट अगर आपको शुरू भी करना है तो इनिशियल आपको 3 से 4 प्रोडक्ट्स अच्छे चाहिए, वो बाहर से चाहिए आपको, चाहे आप उसके अंदर किसी को हायर करके 30-40% का कमीशन आप उसको दे रहे हो, तब भी you'll save a lot of money। अगर आप कोई कह लेंगे 20 बाय $25,000 का प्रोजेक्ट ले आते हैं एक आध, तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। राइट, ठीक है। मतलब अब हम प्रॉब्लम नेक्स्ट चलें। बहुत कमेंट्स हैं अभी जिनके हमें आंसर करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चाह रही हूँ कि पहले कि सेशन हमारा एंड हो। और देन जी अहमद मंजूर साहब, पहले इन सर का सवाल ये भी अभी रहता है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो भी रहता है। देन इनका एक और क्वेश्चन है, विच वन इज बेटर, सोलोप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप एज यू आर एंटरप्रेन्योर बाय योरसेल्फ? ठीक है, क्या बेटर है ये भी बताना है आपने। देन फिर नेक्स्ट जो है हमारे एक और भी हमें क्वेश्चन आया हुआ, देन हम उसकी चर्चा। देखिए he said social entrepreneurship और entrepreneurship, ये क्या है? सोलो no देखिए जी, to be very honest, if you are the only founder of your company, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आप कंट्रोल फ्रीक हो, ठीक है, कि आप किसी और के होना बर्दाश्त नहीं करते, या तो आपको टीम मैनेज नहीं करनी आती, ठीक है। देखिए इट्स अ टेस्ट। इन्वेस्टर आके सबसे पहली चीज देखता है कि अच्छा यार, पहली चीज ये कि मल्टीपल को-फाउंडर्स, यूजुअली इन्वेस्टर्स की ये पहली रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल को-फाउंडर्स वाली, क्योंकि एक बंदे को इतना कंट्रोल देना इज डेंजरस, ठीक है, व्हिच इज फेयर, ओके। आपको यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स सेइंग दिस। कुछ केसेस के अंदर यस पीपल हैव बीन देयर जो कि अकेले फाउंडर्स थे एंड कर गए, बट वो बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ना, अगर आपका ये टेस्ट होता है इनिशियल कि आपने अपने को-फाउंडर आपने कैसे लेके आना है, आपको एक आइडिया आया, आपने अपने एक बंदे को जाके बेचा वो आइडिया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ और ये काम करेगा, और अगर तो आप उसको बेच गए हो और अगर आप उसको उस चीज के ऊपर ले आए हो कि अच्छा यार हाँ ये काम करेगा, तो ये तो पहली आपकी सक्सेस यही है ना कि अच्छा इसने किसी और को बेचा और वो बंदा जो है अपनी लेट्स जो भी जॉब कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो छोड़ के इसके साथ लग गया है।
इसका मतलब है कि आप अपनी चीज औरों को भी बेच सकते हो। पहला टेस्ट आपका ये है। तो आई वुड नेवर रिकमेंड बीइंग अ सोलो पर्सन ऑन द टीम, ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली। आप अकेले जो है, आप कहें कि आप अकेले जो है प्रोडक्ट भी मैनेज कर लेंगे, आप अकेले मार्केटिंग भी मैनेज कर लेंगे, आप अकेले जो है कस्टमर सर्विस भी संभाल लेंगे, आप अकेले सेल्स भी संभाल, ये पॉसिबल नहीं होता। सो डेफिनेटली you need to have team of at least 2-3 people, at least 2, मैक्सिमम 4 भी हो जाते हैं, ठीक है, 3 भी हो जाते हैं, but राइट। definitely need some people from इनका different जो भी backgrounds. दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगी कमेंट हम ऐड करें। Yeah, फराज साहब okay. कह रहे So हैं, वो कह रहे हैं 30-40 कस्टमर्स। कहाँ गया इनका कमेंट? 30-40 कस्टमर्स, आर यू किडिंग? यू ऑलवेज स्टार्ट विद सॉल्विंग फॉर वन कस्टमर एंड देन यू मूव टू सेकंड। इनको बताइए, इनको लग रहा है कि 30-40 कस्टमर्स का टारगेट वाली बात कुछ ठीक नहीं है। नहीं, it's very okay, it's very okay. अब जो इन्होंने शेयर किया है सवाल, देखिए होता क्या है कि जब आप एक कस्टमर पे फोकस करते हैं ना, तो वो एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, वो एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है। वो उस कस्टमर का प्रोजेक्ट बन रहा होता है, वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। ये बात वैसे भी आजमूदा है, ठीक है, कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चाहिए होते हैं। अगर आप एक ही बंदे से डील करते रहेंगे तो आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो वेरी स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ दैट पर्सन होगा। यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। यू वांट टू बिल्ड समथिंग सेकेंडली, जो आजकल है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन है, जितनी ज्यादा फाइन प्रोडक्ट होगी उतना ही ज्यादा बेटर होगा, और जितने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच चुकी होगी एक अच्छे बेटर वे में, उतना ही ज्यादा बेटर देखिए, होगा। इसके अंदर ना देयर इज अ प्रोडक्ट, क्विक बुक्स का पता होगा शायद, कुछ अकाउंट्स के लोगों को क्विक बुक्स का पता होता है। क्विक बुक्स जो है वो, उसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपनी मार्केट के अंदर जो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मार्केट के अंदर वो 46 प्रोडक्ट था, 46। उससे पहले 45 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते थे, लोग यूज कर रहे थे। टुडे क्विक बुक्स इज नंबर 1 सॉफ्टवेयर। सो डजंट मैटर कि आप लेट यूज कर रहे हो, इट जस्ट व्हाट मैटर्स इज कि आप चीज सही कर रहे हो। एंड क्विक बुक्स ने जो मैंने आपको फ्रेमवर्क पहले बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने कस्टमर से जाके मिलना है, उससे पूछना है कि हाई इंपॉर्टेंस और लो सेटिस्फेक्शन वाले फीचर्स कौन से हैं। क्विक बुक्स ने कुछ डिफरेंट नहीं किया था। लिटरली दे फॉलोड दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। और जिस बुक के जो एक बुक है, आई शेयर द टाइटल एज वेल, ठीक है, वो इन्हीं के उस जो हेड ऑफ प्रोडक्ट था उसी ने लिखी है, और उसी ने बताया कि दैट्स हाउ वी डिड इट। सो यार, ये प्रूवन चीजें, ठीक है, एक कस्टमर के लिए अगर आप करोगे तो वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं है आपका। That's all I can say. राइट। चले अब बताइए, जो इन्वेस्टमेंट वाली जो बात हाँ, हमने पूछी थी ओके। उसके सो हवाले। अब बात हो गई कि आपने जी जो ना, ये है तो कुछ, मेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो कैसे सब कुछ होगा? काइल कैसे करना देखिए, है मैं सबको? एक बात क्लेरिफाई करता चलूं। देखिए, इफ एनी वन ऑफ यू who are listening to me right now, ठीक है, if you really want to do a startup, ठीक है, तो अपने माइंड के अंदर कम से कम 3 से 4 साल का गैप लेके निकलें। This is the time it's going to take you. Overnight success is a fairy tale. Okay, overnight success हमें लगता है देखने में, it's not like that. Okay, और ये कभी भी नहीं, इस तरह से नहीं मिलती है। All right, so अब बात आती है इन्वेस्टर की। तो सबसे पहले तो बात हो गई कि अच्छा जी, आपने जो है जाके प्रोडक्ट बना लिया, फिर कुछ फीचर्स बना लिए, इनिशियली आपने कस्टमर्स को बेच दिया, 30-40 कस्टमर आपका हो गया है जी। आप लेट्स से जी, आप इस टाइम पे आपकी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के अंदर होता ही है कि आपका जी, मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, कि आप 2 लाख रुपया पर मंथ जो है आपकी रिकरिंग आ रही है, आपकी इनकम आ रही है। अब गेम शुरू होती है आपके 3 से 4 इसमें मैट्रिक्स बहुत जरूरी होते हैं। पहली चीज कि आपकी कॉस्ट पर कस्टमर क्या है, कि कितनी कॉस्ट आपकी पर कस्टमर है। दूसरी, वही कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मैटर करती है। और तीसरा, आपकी ग्रोथ कितनी है। लेट्स से जी, आपने अगर पहले 3 माह के अंदर 40 कस्टमर लिए हैं और अगले 40 कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते आपको 4 माह और लग गए, सो दिस इज नॉट ग्रोथ, ठीक है। इन्वेस्टर आपसे जब चीज एक मांगता है, उसमें पिच होती है जी, सबसे पहले जी प्रॉब्लम क्या है जो आप टारगेट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कितने लोगों को है, मार्केट साइज क्या है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप किसी बहुत स्पेसिफिक मार्केट के अंदर जा रहे हैं, इन्वेस्टर वोंट बी इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि उसको पैसा बनाना है, एंड पैसा हमेशा मैसेज से बनता है, ठीक है। तो
वो बहुत स्पेसिफिक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता आमतौर पे। अभी आप देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स के अंदर क्यों व्हाई आर पीपल इन्वेस्टिंग इन ई कॉमर्स, क्योंकि क्लियरली जब कोरोना आया है लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत ज्यादा है, लोगों का रुझान बढ़ा है इस तरफ बहुत ज्यादा। अगर आप ग्राफ देखें, ग्राफ इस तरह शूट किया है, इट मींस कि लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। अब जो स्टार्टअप्स जो पहले से चल रहे हैं उनमें अगर हम पैसा डालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट। ठीक है। सो ये आपकी जो ग्रोथ होती है वो बड़ी मैटर कर रही होती है, फिर आपका मार्केट साइज बड़ा मैटर कर रहा है। आपने सबसे पहले जब अपनी एक पिच बनानी है, जो कि आपको सबसे पहले इन्वेस्टर आपको इस तरह नहीं कहेगा जी आप मीटिंग के लिए आ जाए, नो, सिंपल है। इन्वेस्टर अगर तो वो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, तो ही विल से कि मुझे अपना डेक भेज दो, पिच डेक कहते हैं हम इसको। पिच डेक इट्स अ स्लाइड शो ऑफ लाइक 10-12 पेजेस, 14 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, मार्केट साइज, अभी आप कितना कमा रहे हो, पर कस्टमर आप कितना कमाओगे, और फिर अगले 2 सालों के अंदर आपका क्या प्लान है, अगले 3 सालों का क्या प्लान है, और अगले 5 साल का क्या प्लान है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये 3 से 4 चीजें आपकी बहुत बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर विल नॉट कम ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ही इज गोना कम टू यू इफ यू गोना शो हिम सम नंबर्स कि सर हम पहले 3 माह के अंदर 1 लाख बना रहे थे, अगले 3 माह के अंदर वो उस 1 लाख को हमने 4 लाख किया। इसका मतलब है कि हम एक क्वार्टर के अंदर 300% ग्रोथ पे गए हैं, ठीक है। सो ये ग्रोथ का जो स्केल है, ये दैट मैटर्स अ लॉट। मार्केट साइज जो है आपका वो क्या है, वो दैट मैटर्स अ लॉट। और स्पेशली व्हाट मैटर्स फॉर एन इन्वेस्टर इज यू एज अ को-फाउंडर, योर टीम। कोई भी इन्वेस्टर जो है, यस 40% या 30% ऑफ द टाइम्स वो इन्वेस्ट करेगा उस आइडिया के अंदर, लेकिन द अदर टाइम ही विल इन्वेस्ट इन यू, वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें इन्वेस्ट करेगा। सो आपका अपना बैकग्राउंड, how resilient you are, ठीक है, how good are you with the execution of an idea, तो उस चीज को वो बहुत मैटर करता है। अभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि वो स्टार्ट में तो 2 से 3 मंथ उसकी ग्रोथ हमें नजर आएगी, फिर बीच में गैप आ गया, 40 क्लाइंट आ गए 2 मंथ्स में, और देन 6 मंथ्स का गैप है, 46 मंथ्स में भी नहीं आए। कुछ बिजनेसेस होती है सीजनल, जिनको हम कहते हैं कि वो पीक पे जाते हैं, फिर गैप्स आते हैं। इस तरह के बिजनेस करने वालों को किस तरह, जैसे कि वेडिंग हॉल्स हैं, जैसा कि फोटोग्राफर हैं, जैसे इवेंट्स मैनेजमेंट वाले हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें उनकी जो है सर्विसेज ज्यादा ली जाती हैं, और वो कुछ इस तरह के बिजनेसेस होते हैं ना, तो उनमें वो ज्यादा होती है उसकी रेशो। तो उसको, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? फोटोग्राफर बेसिकली टॉप ऑफ द लिस्ट, जैसे अभी जो है ये बिकॉज ऑफ कोरोना, तो अब जो इसकी सेकंड वेव है वो फिर दोबारा से बंद कर दिया गया सब कुछ। अब बहुत से लोग हैं जिनके वेडिंग हॉल्स हैं, और वो सब लोग तो थोड़ा सा हो गए ना, डिस्टर्ब हो गए कि अब ये क्या करें, और वो साल से चल रहे हैं। इन लोगों को आप क्या टिप देना चाहेंगे जो इतना इन्वेस्ट कर चुके, किसी को नहीं पता था? कोरोना केस इज एक्सेप्शनल, पहली चीज तो ये किसी भी इसी एक्सेप्शनल ने सूप को कितना एक बूस्ट दिया, तो एक्सेप्शनल किसी के लिए फायदेमंद हो गया, किसी के लिए नहीं। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए फायदेमंद नहीं है, और वो साल से वो रेडी तो नहीं थे कि सिचुएशन आने वाली है, मैं चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी जो है नंबर ऑफ पर्संस वो इस हवाले से सफर कर रहे हैं, ये आप भी इस चीज को बेटर जानते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी आप टिप जरूर दें कि वो अब क्या करें, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, और वो कैसे बैलेंस। देखिए टिप इसके अंदर ये हो सकती है, डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। जब आप देखते हैं कि अच्छा एक चीज जो है डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये है कि एग्जांपल आपको देना चाहूंगा मैं, कि जब कोकोला की बात करते हैं, ठीक है, दे हैड दिस टारगेट कि जी हमारी बोतल जो है ना हर बंदा पीता हो। तो जब हर बंदे ने बोतल पी ली तो कोक की ग्रोथ रुक गई क्या? अब उनका ग्राफ देखिए, ये जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं इनके एक टारगेट होता है, ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ अगर रुक जाती है तो फिर नीचे आने लग जाती है। सो कोक ने जब क्या हुआ कि जब उनकी बोतल हर बंदा पीने लग गया, तो व्हाट दे डिड, दे केम अप विद चिप्स, राइट। पेप्सी ने ये किया, जब पेप्सी हर बंदा पीने लग गया है, पेप्सी ड्यू चल रही है, उनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और हर बंदा पी रहा है। अच्छा यार, अब इसको मजीद इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं दे सकते। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस, we need to come up with something जो हमारे प्रोडक्ट के साथ चलती हो। तो यार बोतल के साथ ना लोग मार्केट की, और पता लगा अच्छा यार बोतल के साथ लोग चिप्स खाते हैं, तो पेप्सी केम अप विद लेज,
उन्होंने, क्योंकि वो बड़ा मार्केट था, बड़ा प्लेयर था, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी खासी बड़ी थी, तो उन्होंने लेज हो गई हर तरफ। सो क्या हुआ कि डाइवर्सिफाई किया बिजनेस को टू ग्रो। सो इसी तरह होता है कि जब आपको लगता है कि अच्छा यार आपका एक प्रोडक्ट जो है अभी वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा हमारी अपनी, ठीक है, व्हेन वी रियलाइज कि अच्छा यार ये जो हमारी जो स्कूलिंग वाली चीज है, ठीक है, इसका सेल्स साइकिल थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हमने एक स्कूल को बेचना होता है, फिर स्कूल के सारे बच्चों ने, सारे पेरेंट्स ने, सारे टीचर्स ने हमारे साथ आना है, वो बड़ा एक शिफ्ट होता है, एक बड़ा डिजिटल शिफ्ट होता है, उसमें टाइम लगता है उनको, जिसकी वजह से हमारा सेल्स का साइकिल जो है, सेल्स साइकिल कहते हैं कि लेट्स से जी मेरा हर 10 दिन में मेरा एक कस्टमर आता है, ये मेरा सेल्स साइकिल है। हमने कहा ये सेल्स साइकिल को छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो हमें प्रोडक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया ज्यादा। तब भी हमारा जब उतना कम नहीं हुआ तो भी अच्छा सर कि अच्छा कुछ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ क्विज गेम्स खेलते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई उसको की, वही चीज जो उसके साथ सपोर्ट करती है, उस चीज को, मेरे मेन बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, करनी वही है, बट थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है इसको। तो जो ये जो वेडिंग हॉल्स वाले हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, दे कैन, सो वेडिंग हॉल्स वाले व्हाट दे कैन डू इज के वो दे कैन मे बी जंप इनटू इवेंट मैनेजमेंट वाली साइड पे, कि अच्छा जी आपने अगर घर में इवेंट करवाना है जी, तो हम वो आपको डेकोर करके दे सकते हैं, जिस तरह आजकल लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे अपने लॉन के अंदर ही डेकोरेशन करवा ली, वहीं पे करवा लिया इवेंट, ठीक है। जैसे फोटोग्राफर्स की अगर बात की जाए तो व्हाट दे कैन डू इज के जी मे बी सम सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड वीडियोस या पर्सनलाइज्ड कार्ड्स आपको बना के दे सकते हैं, हम वेडिंग कार्ड्स बना के दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड से बहुत मेरा मतलब अच्छी ये है कि उस ये पे टिप है कि आप अपने बिजनेस की जो है मोड थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर लें कुछ और थोड़ा सा चेंज करके, और देन अपना जो है थैंक यू सो मच। वैसे तो आपने देखिए एक चीज प्रूव बहुत हो गई कुछ ना, बताया, आपको बट गवर्नमेंट मैं नहीं बोलेगी। वैसे तो आपने बहुत कुछ बताया, जितना सब कुछ प्लीज प्लीज बताया सभी बहुत यूजफुल है। कमेंट्स में आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, कह रहे हैं हमजा वेरी वेल स्पोक, और क्या क्या कहा जा रहा है, स्पोक वेरी वेल, ठहरे ठहरे ठहरे। तो पर मैं फिर भी चाहूंगी कि आप नाइसली स्पोकन हमजा। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का टाइम पता ही नहीं चला, और ये जो है 1 आवर गुजर चुका है, ओके और इस तरह से जी जी हमने किया। अभी बहुत सी चीजें, आई थिंक अभी बहुत कुछ रहता है जो कि हमने डिस्कस करना है, बट स्टिल प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे क्योंकि हो गया 1 आवर। अब ऐसा है कि मैं ओके। चाहूंगी फिर भी कि आप एंड में कोई मैसेज देना चाहें अपने इस सब बात को समराइज करके, तो वो जरूर। देखिए मैसेज मैसेज यही है कि जी हमें इनिशियली जो चमकती हुई चीज लग रही होती है वो उतनी चमकती भी नहीं होती है, हम उसके पीछे भागते हैं। सो डोंट डू दिस, ओके, जस्ट थिंक, कुछ टाइम लें, कुछ सोचें, उसके बाद जंप इन करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने के या कोई सर्विस देने के बारे में सोच रहे हैं, डू एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्च, पहले रिसर्च करें ज्यादा से ज्यादा। देखें जी, मैंने कोशिश की है कि हमारे एरिया में जो फेल्ड बिजनेसेस थे, जिन्होंने एक चीज पहले करने की कोशिश की और वो फेल हो गए, मैं उनसे जाके मिला कि यार मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये चीज क्यों नहीं चली। चीज क्यों चली वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं चली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि मैं ये गलतियां ना करूं, ठीक है। सो आप और लोगों से बात करें ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई आइडिया है, और एंड प्लीज स्टे ओपन टू द फीडबैक। लोगों का मसला ये होता है कि लोग अपनी एक आइडिया के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं होते, अगर उन्हें आप कुछ बताएं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल डोंट डू बुरा दिस, मान जाते हैं, ओके। तो जी बुरा मत मानिए। कोई भी सजेशंस हैं वो आपके भले के लिए ही है, तो उनको पॉजिटिव होकर सोचे। अहमद मंजूर साहब भी अप्रिशिएट करें, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच आप सब देखने वालों का, आपकी कंट्रीब्यूशन का, और हमजा आपका बहुत शुक्रिया। इतना जो आपने अपना ढेर सारी अपनी एक्सपर्टीज हैं और अपना सब नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छा। लास्टली आपसे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, सॉरी, आप आई वुड कुछ लाइक टू थोड़ा ऐड सा। दिस वन। जी जी जी, श्योर। मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, वो ये है कि गाइस, इफ एनीवन, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का या किसी भी आगे पीछे जानने वाले का स्कूल है, कॉलेज है या फिर एकेडमी वगैरह है, प्लीज लेट देम नो अबाउट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। दे कैन एक्चुअली विजिट आवर वेबसाइट, book a demo with us, and we will be right there for you, for them. And also, if you guys want to like want some more guidance, you can note down my email address, which is hamza@soup.io, hamza@soup.io. Okay, you can drop me emails over there. Please mention PNY training in it,
ताकि मैं उसको देख सकूं और मुझे पता चल जाए कि ये इस लिहाज से ईमेल आई है। ठीक है जी। And thank you very much for to PNY for having me, and thank you very much everyone for listening to me. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इस सर्दी के मौसम में गरम गरम सूप पीते हुए आप सूप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। PNY ट्रेनिंग्स का यही जो है कोशिश है कि आप सबको इस तरह घर बैठे सबको कनेक्ट करवा के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाए। तो यहाँ पे हमजा आपका बहुत शुक्रिया, आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए सेशन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.